Next is equivalent parameterization. What do you mean by equivalent parameterization? That is, we say that say alpha from AB to Rn and beta from CD to Rn of a piecewise smooth curve C are equivalent if there exists a diffeomorphism U from CD to AB such that alpha of U of t is equal to beta of t. So if you are given two parameterization, just you have to guess that U, and if you guess that U, then you just have to verify whether that U is diffeomorphism or not. So let's see, we were having this question, we are having two parameterization. So now the first thing is you need to guess that U function. So what is that U? U is from 01 to 0 to pi, and that is satisfying this alpha of ut is equal to beta of t. So just put it, alpha of ut का formula लिखा and beta of t का. Now after this you just need to guess the parameterization. So we observe that ये cos था, इधर cos 2 pi t, तो मतलब ut must be 2 pi t है, ऐसा guess किया. Perfect. Then later on you just if you guess that function u, then just prove that u is diffeomorphism. So diffeomorphism के लिए मतलब क्या प्रूफ करना पड़ेगा? बाइजेक्टिव प्रूफ करना पड़ेगा, इनवर्स सेम थिंग जो भी है, समथिंग लाइक बाइजेक्टिव, डेरिवेटिव चेक करो, इनवर्स निकालो, u and inverse have continuous derivative. These all properties you have to check once you find that u function. ठीक है. सी लास्ट एक क्वेश्चन किया था उन्होंने पूरा मिस इनवर्स निकाला था. इनवर्स कैसे निकालते हैं? u कंपोजिट u इनवर्स इक्वल टू 1 एट t लिया तो दैट विल बी 1 ऑफ t, दैट इज t, and similarly we did that. Now we stated two theorem, that is theorem 1, two equivalent parameterized curve have same image set. See ये सब MCQ लायक क्वेश्चन है यहाँ. एटलीस्ट थ्योरम अगर का प्रूफ नहीं देखना है तो इट इज़ ऑफ द फॉर्म MCQ के टाइप का क्वेश्चन होगा. Two equivalent parameterized curve have same image set, and second one is if alpha and beta are equivalent parameterized curve, then let U be open subset of Rn and f from U to R be a continuous, then इंडिकेशन सेम रहता है, करेक्ट. with respect to U, with respect to V. Okay. So बेसिकली इसका प्रूफ मैं तुम लोग को सेंड करता हूँ. एक्चुअली इसका प्रूफ अपने एग्ज़ाम के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, और प्रूफ क्वाइट इजी है, तुम लोग ट्राई करोगे फिर भी मिलेगा तुमको. सी पहले केस में क्या लिया है? टू इक्विवेलेंट पैरामीटराइजेशन हैव सेम इमेज सेट. व्हाट डू यू मीन बाय इमेज सेट? What do you mean by image set? Can somebody tell me? Image set means what? Image set, that is set of all ut where t belongs to something like this. This will be the values of ut. Image set of u अगर बात किया मैंने, करेक्ट, मतलब u की वैल्यूज़ क्या क्या ले रहे हैं, दैट विल बी योर इमेज सेट. सेम अगर इमेज सेट ऑफ v निकाला तो दैट विल बी सेट ऑफ ऑल vt वेयर t बिलोंग टू, जो भी t पे कंडीशन हो, डिपेंड करता है. इज दैट ओके? सो वी आर गिविंग, हाँ, सी लेट मी, चलो मैं प्रूफ ही करता हूँ, छोड़ो रहने दो. वी नीड टू प्रूव टू इक्विवेलेंट पैरामीटर्स कर्व हैव सेम इमेज सेट. ठीक है. सो लेट अस प्रूव फर्स्ट. Okay, so first of all we have to give two parameterization. Let alpha एक parameterization दिया EB to Rn and beta CD to Rn B two parameterization. ठीक है. रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? टू इक्विवेलेंट पैरामीटराइजेशन हैव सेम इमेज सेट. तो पहले तो दो इक्विवेलेंट, पहले तो मैंने दो पैरामीटराइजेशन बताया और अभी बोल रहे हैं दे आर इक्विवेलेंट. व्हाट डू यू मीन बाय दे आर इक्विवेलेंट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट? यू ऑलरेडी नो समथिंग. There exists a diffeomorphism function. Do you see that?
When do we say they are equivalent? If there exists a diffeomorphism U from CD to AB such that this satisfy. Correct? So this is given in our first case. So I took two parameterizations and parameterization curves. Next, alpha and beta are equivalent. That means what? Equivalent. What do you mean by equivalent? By the definition, there exists a diffeomorphism, correct? Diffeomorphism U from CD to EB such that, what is that? Alpha of ut था ना, alpha of ut that is equal to beta of t for all t belong to CD, correct? This is what we are given to prove image of alpha that is equal to image of beta. This is what you are supposed to prove. ठीक है, इतना क्वेश्चन दिया है अपने को. Is it clear? Is the question clear, everyone? You are given two parameterization. You are also given they are equivalent. What do you mean by equivalent? Means there is a function such that they satisfy this condition. You need to prove image of alpha is same as image of beta. How can you prove two sets are equal? What is the condition to prove two sets are equal? Yes, can somebody tell me? How can you prove? परफेक्ट, वेरी नाइस, करेक्ट. सो मतलब अगर मैंने इसमें कोई एलिमेंट लिया तो मुझे प्रूव करना है वो एलिमेंट इसमें है, और इसमें कोई एलिमेंट लिया तो वो एलिमेंट इसमें है. इज दैट ओके एवरीवन? इसमें से एक पार्ट डायरेक्ट क्लियर है. कैन समबडी टेल मी? इसमें से एक पार्ट डायरेक्ट क्लियर है. कैन यू सी फ्रॉम द डिफ्यूमॉर्फिज्म यू सी दैट बीटा ऑफ टी सेम एज अल्फा ऑफ यू टी. That means if I take a element in this guy, image of beta, तो definitely true होएगा. That means let me just write, let t1 t2 up to tn belong to image of beta. Suppose मैं ये start कर रहा हूँ. What do you mean by image of beta? Means there exists some point, there exists some t belong to cd. Image का मतलब यही होता है ना, जिसका दैट इज बेटा ऑफ टी क्या रहेगा, ये गाय, दैट इज t1 t2. दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ इमेज सेट. मतलब कोई भी एलिमेंट को बोला ये इमेज में है, मतलब क्या उसका कोई प्री इमेज है सच दैट दैट बीटा ऑफ टी दैट इज इक्वल टू दैट गाय. इज दैट ओके? यस, बट यू हैव सीन समथिंग. बीटा ऑफ टी किसके सेम है? अल्फा ऑफ यू टी के है. So can I write in the next step this is same as alpha of ut, and this is t1 t2 and tn, correct? Can I say from here t1 t2 tn belongs to image set of alpha? Do you agree? Because this is alpha of ut का value ये आ रहा है. So can I say this guy belongs to your image set of alpha? Do you agree? Alpha of something equal to ये ना. And where is your u of t? U of t is, where is your u of t? That is in AB. If you see your function, u मेरा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? C2 to AB, मतलब u का जो वैल्यू आएगा वो AB में आएगा, and alpha of ut equal to beta t. So the first thing is I am taking some element in image beta. That means say t1 t2 up to tn, this belong to image beta. That means what? उसका कोई प्री इमेज है, there exists t belong to cd such that beta of t equal to this guy. But we know that beta of t is same as alpha of ut, that is same as this, but it is again alpha of something equal to ये ना, और ये जो something है that is in AB. That means what? This guy is in image of alpha, correct?
That means what did you prove? What did we prove? So image of beta that is contained in image of alpha. Do you agree? Just go through the proof once again. Try to do it by yourself. स्टार्ट कैसे किया हम लोगों ने? एक एलिमेंट लिया इमेज बीटा में. दैट वाज क्वाइट सिंपल. ये पार्ट तो कोई सिंपल है. देयर इज नो इशू. इज इट ओके? Yes, is that okay everyone? Good. So what next? अभी क्या बचा अपने को? क्या प्रूफ करना है? Image alpha is contained in image beta. Correct? So I should take an element which is in image alpha. So let us take S1, S2 up to Sn that belongs to image alpha. Is that okay? Let me call this guy as S. मतलब क्या आएगा? This guy is in image alpha and try to see something. ये डिफ्यूमॉर्फिज्म से क्या रिलेशन है इसका? Can I see this? Since U is diffeomorphism, U is diffeomorphism और ये S मैंने कहाँ लिया? इमेज ऑफ अल्फा में लिया. ओके मतलब S कहाँ पे है? यहाँ पे है. सो कैन आई सी दिस? जस्ट मैं लिख रहा हूँ, देखो तुम लोग. Diffeomorphism is a big thing. Can I say there exists T belong to AB such that U of T equal to S? Can you see this? And if yes, then how can we say? Just think about it. What is your function U and what it satisfy? तो वही आई एम जस्ट टेलिंग यू टू गेस. क्या किया मैंने जस्ट एक एलिमेंट लिया इमेज अल्फा में. देन नाउ आई एम यूजिंग डिफ्यूमॉर्फिज्म. नाउ टेल मी ये देयर एग्जिस्ट टी कैसे हम लोग बोल सकते हैं? हाउ कैन वी से देयर एग्जिस्ट टी सच दैट यू ऑफ टी इक्वल टू एस? ऑब्जर्व दिस थिंग. व्हाट इज योर यू ऑफ टी इक्वल टू एस? यू डिफ्यूमॉर्फिज्म में मतलब क्या? क्या बोल रहा है ये? यू डिफ्यूमॉर U is from C to D and U of T belong to A comma B. Perfect. Then alpha of ut is beta t. मतलब the thing is that ये जो U of T है ये किसके है? अल्फा के डोमेन में है. It is in domain. So U of T इक्वल टू क्या रहेगा? S रहेगा. दैट मीन्स वॉट? ये जो S है, जो S1 S2 है, इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ? S1 S2 up to Sn that is same as alpha of S. But S क्या है? S is same as U of T, that is alpha of ut. Try to see this. But alpha of ut is same as beta of T. You started with S1 S2 Sn, that is same as alpha of S. हाँ, T belongs to यहाँ पे बोल रहे हैं
यू का डोमेन क्या है, एक सेकेंड। यू, हाँ एक्चुअली यस, टी मस्ट बी इन सी डी, बिकॉज यू का डोमेन क्या है, सी डी है ना, सो टी मस्ट बी इन सी डी, सॉरी ये। दिस इज C comma D. So there exists T comma C, T belong to C comma D such that U of T equal to S. Now is that okay? शायद इसी पे तुम लोग कंफ्यूज हो रहे थे बिकॉज T इसमें था। सी व्हाट इज योर एस, एस क्या है, इमेज सेट, इमेज ऑफ अल्फा है। इमेज ऑफ अल्फा मतलब क्या, सी अगर ये मेथड में नहीं जाना तो यू कैन डायरेक्टली थिंक अबाउट इट, जैसे इसको हम लोगों ने किया, दिस बिलोंग टू इमेज ऑफ बीटा मतलब क्या, देयर एग्जिस्ट टी सच दैट बीटा ऑफ टी इक्वल टू ऐसा, सेम इधर भी हम लोग बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ टी सच दैट, अगर ये फॉर्मेट में नहीं जाना है तुमको, ठीक है, जस्ट आई विल स्किप दिस पार्ट, लेट अस ट्राई टू डू द सेम थिंग जैसे ऊपर किया, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एस बिलोंग टू इमेज ऑफ अल्फा, अल्फा क्या था तुम्हारा, अल्फा फ्रॉम ए बी टू आर एन था ना। सो इफ यू से दैट एस बिलोंग्स टू इमेज ऑफ अल्फा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, ये एस है, एस बिलोंग टू इमेज ऑफ, व्हाट डू मीन बाय दैट, देयर विल एग्जिस्ट अ टी, कहाँ पे टी आएगा, इमेज, इमेज कहाँ पे टी आएगा, सच दैट एफ ऑफ टी इक्वल टू एस, सॉरी अल्फा ऑफ टी इक्वल टू एस, वेयर विल दैट बी, दैट इज अल्फा ऑफ टी इक्वल टू एस, दैट टी विल बी इन डोमेन ना, व्हाट इज योर डोमेन, यू का मैं यूज नहीं कर रहा हूँ अभी कुछ भी, ठीक है, I am just saying alpha from AB to Rn and S belong to image alpha, that means what, कोई तो एक प्री इमेज रहेगा, there is just T in AB such that alpha of T equal to S, is that okay, इतना क्लियर है। Now observe this T belongs to interval AB, observe this thing, can I have if this T belongs to, since your U is डिफ्यूमॉर्फिज्म, अभी डिफ्यूमॉर्फिज्म का यूज़ करना है, ये अल्फा ऑफ टी इक्वल टू एस साइड में रखता हूँ मैं, लेट मी सी अबाउट दिस टी, यू क्या है तुम्हारा, कहाँ से कहाँ तक है, यू इज़ फ्रॉम सी डी टू ए बी आई थिंक, यस, and U is diffeomorphism. And where is this element T? T is in this guy, codomain. Yes. Hello. So I want to use this T which is in here to say something about U of T. Okay, so let me write S equal to alpha of T. That means what? अभी मेरे को T को लिखना है, इसका तो क्या लिखेंगे, ये प्री इमेज है, what can I write here? T को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, what is T here? इसके लिए क्या है, इमेज में है ना ये, एंड यू ऑब्जर्व समथिंग, यू क्या है, डिफ्यूमॉर्फिज्म है, व्हाट डू मीन बाय यू इज डिफ्यूमॉर्फिज्म मींस ये थ्योरम क्या, ये यू क्या है तुम्हारा, बाइजेक्टिव है, इनवर्स उसका कंटिन्यूअस है एंड एवरीथिंग एक्चुअली। सो अगर टी इसमें है तो देयर विल एग्जिस्ट सम वैल्यू इन सी टू डी सच दैट यू ऑफ दैट गाय मस्ट बी टी, हेलो,
टी दूसरा नोटेशन कुछ बोलता हूँ मैं. सी दिस टी बिलोंग्स टू ए टू बी मीन्स व्हाट. You know that t belongs to a to b. So दूसरा notation suppose p बोलता हूँ, that means what, there will exist p such that u of p will be equal to this t. Do you agree now? Do you agree? ये t क्या है, इधर रेंज सेट में है, तो इसके लिए डोमेन में आने चाहिए, प्री में जाने चाहिए, तो मैं उसको p बोल रहा हूँ और ये p कहाँ रहेगा, c to d में रहेगा. करेक्ट. यहाँ से मेरे को t का एग्जिस्टेंस मिला यहाँ पे, एंड अभी t मेरे को मिल गया है ये इंटरवल में है. सो t का यूज़ करके मैं u में इसका प्री इमेज निकाल रहा हूँ. सो दैट इज u ऑफ p इक्वल टू t. करेक्ट. एंड वेयर इज दिस p? सो आई कैन राइट इट एज अल्फा ऑफ u ऑफ t. t की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, u ऑफ p. कैन आई राइट इट? यस. डू यू सी दैट एवरीवन? फर्स्ट स्टेप क्या किया मैंने, सिंस अल्फा एस बिलोंग टू इमेज ऑफ अल्फा, इधर से मेरे को क्या मिला, एक टी मिला सच दैट अल्फा ऑफ टी इक्वल टू एस. इज दैट ओके? अभी मेरे को ये टी कहाँ पे है, इंटरवल ए टू बी में है. करेक्ट. नाउ वी ऑब्जर्व समथिंग, यू क्या है, सी टू डी टू ए पी है, एंड ए बी में मेरे को एक टी मिला है. परफेक्ट. सो कैन आई टॉक अबाउट इट्स इनवर्स इमेज, दैट इज ए बी बिलोंग्स टू image of u of t, that is t belongs to image of u of t. समझ रहे हैं? This t belongs to image of u of t. What do you mean by that? That is t belongs to ab. That means what? There will exist some p, उसका भी image के लिए मतलब there will exist some p which is belong to c to d such that up equal to t, u of p equal to t. and ये p कहाँ पे है, अभी c to d में है. So alpha of up, this will be alpha of up. बट वी नो समथिंग, डिफ्यूमॉर्फिज्म में रूल क्या है, अल्फा ऑफ यू एक्स इट इज सेम एज बीटा ऑफ एक्स, सो इट विल बी बीटा ऑफ पी. मतलब वी प्रूव दैट एस इक्वल टू बीटा ऑफ पी. मतलब एस मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, इमेज अल्फा में, एंड वी प्रूव दैट एस इज इन इमेज बीटा. ट्राई टू सी वंस अगेन. Just try to claim everything smoothly, don't go fast, and tell me if you understand this part. हाँ ओके. तो पहले इतना समझा क्या, मतलब अगर एस इमेज सेट में है, मतलब क्या, एक अल्फा एक टी रहेगा सच दैट अल्फा ऑफ टी इक्वल टू एस. इज दैट ओके? इतना ठीक है. ओके. नाउ ऑब्जर्व दिस, ये टी कहाँ पे मिला है तुमको, इन द इंटरवल ए बी. करेक्ट. मतलब टी का वैल्यू तुमको मिल गया है. सपोज टी का वैल्यू फाइव, यू से फाइव इज इन दिस इंटरवल, एंड यू हैव वन मोर फंक्शन, एक फंक्शन है तुम्हारे पास जो क्या बोलता है, सी टू डी से एंड ए टू बी है, ये बाइजेक्टिव है, और जो फाइव तुमको मिला है वो यहाँ पे रहेगा समथिंग इन द इंटरवल ए टू बी. तो वो फाइव के लिए कैन आई हैव अ इनवर्स, कैन आई हैव अ प्री इमेज फॉर दैट फाइव, बिकॉज दिस फंक्शन यू क्या है, वो बाइजेक्टिव है. जो फाइव में जो यहाँ पे टी एग्जिस्ट हुआ है वो यहीं पे रहेगा, इंटरवल ये में रहेगा. सपोज फाइव में बोल रहा हूँ, तो दैट फाइव बिलोंग्स टू दिस. इसके लिए मैं कैन आई हैव अ प्री इमेज. यस, कैन आई हैव अ प्री इमेज. एंड why that प्री इमेज विल एग्जिस्ट, बिकॉज योर फंक्शन इज बाइजेक्टिव. इधर कोई भी एक बंदा उठाया तो उसका प्री इमेज रहेगा. प्री इमेज मतलब क्या, मतलब देयर विल एग्जिस्ट सम एलिमेंट इन पी, इन सी डी, जो मैंने बोला देयर एग्जिस्ट पी विच इज इन सी डी सच दैट यू ऑफ पी इक्वल टू टी. टी इसमें आएगा, यू ऑफ पी इक्वल टू टी. इज दैट ओके? ट्राई टू सी प्रॉपरली. ये सेट में कोई भी एलिमेंट उठाओ उसका कोई प्री इमेज आएगा. व्हाट डू मीन बाय प्री इमेज? ये सेट के एलिमेंट क्या है, इमेज ऑफ दिस गाय. image of this guy means what, there will exist some element such that that will equal to this. There exists a p in cd such that u of p equal to t. Do you see existence of cd? Why this exists? Because your function is bijective.
सो अगर इंटरवल ए टू बी में कोई भी एलिमेंट पकड़ा तुम लोगों ने तो उसका एक इन्वर्स इमेज रहेगा, एंड वो इन्वर्स इमेज किस में रहेगा, सी डी में रहेगा. सो दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग. उसको मैं P बोल रहा हूँ, दैट इज P बिलोंग्स टू सी डी सच दैट U ऑफ P इक्वल टू T. करेक्ट. डू यू एग्री नाउ? हेलो. नाउ इफ यू हैव दिस P, अगर P मिल गया तो अभी U ऑफ P इक्वल टू T है. स्टार्ट विथ S क्या लिया था मैंने, व्हाट इज माई एस, एस इज अल्फा ऑफ टी. बट टी को मैं क्या रख रहा हूँ, U ऑफ P, दैट इज अल्फा ऑफ U ऑफ P. बट यू नो व्हाट इज योर डिफ्यूमॉर्फिज्म का कंडीशन क्या है, अगर अल्फा ऑफ यू टी हो सो दैट विल बी सेम एज बीटा ऑफ टी. सो अपने केस में ये क्या है, अल्फा ऑफ यू पी है एक्चुअली. सो दैट विल बी सेम एज बीटा ऑफ पी. दैट मीन्स व्हाट, योर एस इज इक्वल टू बीटा ऑफ पी. व्हाट डू मीन बाय दैट, एस इज इन दैट सेट इमेज ऑफ बीटा. मतलब देयर एग्जिस्ट अ पी सच दैट बीटा ऑफ पी इक्वल टू एस. एस के लिए एक प्री इमेज मिल रहा है बीटा में. सो एस इज इन इमेज ऑफ बीटा. दैट मीन्स व्हाट, इमेज ऑफ अल्फा इज कंटेन्ड इन इमेज ऑफ बीटा. फर्स्ट पार्ट वर्ड इजी, उसमें मैंने डिफोमॉर्फिज्म का यूज भी नहीं किया ना. एक्चुअली यूज तो किया, मतलब इक्वल बताने के लिए. बीटा ऑफ टी इक्वल टू दिस इज करेक्ट. लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू द प्रूफ वंस अगेन. सो दिस वाज टू प्रूव, अपने को दो पैरामीटरेशन दिया था एंड वी आर गिवन दे आर इक्विवेलेंट. दैट मीन्स व्हाट, देयर एग्जिस्ट अ डिफ्यूमॉर्फिज्म u from CD to AB such that alpha of ut that is equal to beta of t. Now we have to prove image of alpha is same as image of beta. So I will start with this. मैं इसमें एक एलिमेंट ले रहा हूँ और मुझे प्रूफ करना है वो इसमें है. तो इमेज ऑफ बीटा में एक एलिमेंट लिया, मतलब क्या, let us say t1 t2 up to tn belong to image of beta. मतलब there exists a t in CD such that beta of t equal to this. Is that okay? But you know that beta of t is equal to this, but beta of t is same as alpha of ut is equal to this. That means what, alpha of something equal to ये आ रहा है, मतलब ये बंदा इमेज ऑफ अल्फा में भी है. This guy is in image of alpha, so first part is okay. Image of beta is contained in image of alpha. Next part, now I will start with a element which is in image of alpha, correct? So let me just clear this. So if I take element in image of alpha, so I will have a pre-image. alpha कहाँ से था, ए बी से आर एन पे था, और s मैंने क्या लिया, image of alpha में लिया. मतलब क्या, there will exist a t which is in here ए बी such that alpha of t equal to s. Is that okay? करेक्ट. नाउ ऑब्जर्व समथिंग, मेरे को एक एग्जिस्टेंस ऑफ टी मिल गया ये इंटरवल में. आई हैव अ फंक्शन यू विच इज़ फ्रॉम सी डी टू ए बी. सो दैट टी विल बी हियर समवेयर, करेक्ट. सो उसके लिए भी मेरे को एक प्री इमेज मिलेगा. वाई दैट प्री इमेज एग्जिस्ट, बिकॉज योर यू इज बाइजेक्टिव. सो मतलब वो टी के लिए आई विल हैव अ प्री इमेज इन दिस इंटरवल सी डी. उसको मैं पी बोल रहा हूँ. देयर एग्जिस्ट अ पी विच इज इन सी डी सच दैट यू ऑफ पी इक्वल टू टी. यस. सो स्टार्ट विथ एस क्या था, अल्फा ऑफ टी दैट इज इक्वल टू अल्फा ऑफ टी सेम एज यू ऑफ पी. सो अल्फा ऑफ यू ऑफ पी दैट इज सेम एज बीटा ऑफ पी. दैट मीन्स व्हाट, योर एस इज बीटा ऑफ पी. मतलब पी एक बंदा है जिसका इमेज ये आ रहा है. सो एस इज बिलोंग टू इमेज ऑफ बीटा, करेक्ट. Okay, now let me ask you something. Is the converse true? Is the converse true? What do you mean by converse of the above statement, above theorem? थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, टू इक्विवेलेंट पैरामीटराइजेशन कर्व हैव सेम इमेज सेट. मतलब अगर इमेज सेट सेम है तो कहना इसे दे आर इक्विवेलेंट. यस, द आंसर इज नो. वी हैव अल्फा ऑफ टी एक दे दो, दैट इज कॉस टी कॉमा साइन टी, where image 0 is less than t is less than 2 pi, and beta of t is equal to sin t comma cos t, where this is
0 is less than t is less than 2 pi. करेक्ट. व्हाट कैन यू सी, दोनों का इमेज सेट क्या है? सर्कल ही है, कॉस और साइन. डू यू सी दैट image set of alpha and beta both are circle only. करेक्ट. ये देखो, ये x इक्वल टू कॉस थीटा है, y इक्वल टू साइन थीटा. इट सेटिस्फाई दैट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1. इवन दिस गाय ऑल्सो सेटिस्फाई. x इक्वल टू साइन पुट किया, y इक्वल टू कॉस, तभी भी वो भी सेटिस्फाई करता है. कौन सा इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. मतलब व्हाट इज द इमेज सेट? इमेज सेट इज सेट ऑफ ऑल x कॉमा y satisfying this x square plus y square equal to 1 for both the people. Image set is true. So image of alpha is same as image of beta. Can you say whether they are equivalent? So equivalent का condition क्या है? Alpha of ut equal to beta of t put करो. Can you get that? You must have a u 0 to 2 pi से लेके 0 to 2 pi से लेके वो भी 0 to 2 pi ही है. क्या चाहिए? इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? अल्फा ऑफ यू टी मस्ट बी सेम एज बीटा ऑफ टी. जस्ट पुट अल्फा एंड अल्फा ऑफ यू टी क्या आएगा? टी की जगह पे यू टी, मतलब ये क्या आएगा? कॉस यू टी कॉमा साइन यू टी आएगा. एंड राइट हैंड साइड में क्या आएगा? साइन यू टी कॉमा कॉस यू टी. मतलब क्या इक्वेट करना रहेगा तुमको? यू हैव टू इक्वेट दिस थिंग. कॉस यू टी दैट इज सेम एज साइन टी. कैन यू गिव मी अ फंक्शन यू टी? एंड एक सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंपेरिजन में मिलेगा साइन यू टी इक्वल टू cos t, something like this. From both the thing, can you give me u of t? From this guy, can you tell me u क्या आएगा? u of t cos से sin में चेंज हो रहा है ना, तो एंगल क्या होना चाहिए? पाई बाय 2 के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होना चाहिए. इज दैट क्लियर? परफेक्ट. सो कैन आई से हियर फ्रॉम हियर दिस इज अल्फा ऑफ यू टी ना, दैट इज t माइनस पाई बाय 2 चलेगा या पाई बाय 2 माइनस टी? पाई बाय 2 माइनस टी चलेगा क्या? We are having two options na. Do you see? U of t is, in the first case you can get it as pi by 2 minus t. In the second case you can give the pi by 2 plus t. दोनों यूनिक थोड़ी है. From the second, from both the condition I should get only one t, u of t. So alpha and beta are not equivalent. Is that clear? Just see once again and check whether they are. Yes, is that okay? ओके. सो कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू. सो एक अच्छा सा थ्योरम मिल गया तुमको. इक्विवेलेंट पैरामीटरेशन है तो दे हैव सेम इमेज सेट. कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू. Okay, now second theorem is this: if alpha is from this and beta is this, if they are equivalent and you are saying u is an open subset of Rn, then f is from u to r. So ये integration, that is line integral, will be same. See, ये line integral मैंने किस पे लिया है? स्केलर के लिए लिया है. सेम वेक्टर के लिए भी रहता है. अगर तुम्हारा पैरामीटरेशन इक्विवेलेंट है then your line integral is same. यही वाला स्टेटमेंट की बात कर रहा है कि क्या स्टेटमेंट, और वो कॉन्वर्स की बात कर रहे हैं. तो व्हाट शुड आई रिपीट? स्टेटमेंट मतलब क्या? you are given two parameterization and you are said that u and sorry, alpha and beta are equivalent.
both are equivalent parameterization. So line integral with respect to alpha will be same as line integration with respect to beta. तुम लोगों ने देखा होगा एक क्वेश्चन मैंने किया भी था ऐसा, कहाँ पे गया वो, जिसके लिए दोनों का इंटीग्रेशन सेम आया था, या सी विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ये किया मैंने, एंड ये विथ रिस्पेक्ट टू बीटा दोनों के लिए इंटीग्रेशन सेम आया था. फिर हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया कि ये अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन क्या है कि सेम आ रहा है दोनों. दिस इज़ बिकॉज अल्फ़ा एंड बीटा वॉज इक्विवेलेंट.